गुड मॉर्निंग मालिक. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तो भारत माता की तोड़ मालिक. बेसिकली वी हैव स्टार्टेड विद योर चैप्टर फोर्थ. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एक बार रिफ्रेश मार लीजिए. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में 2 क्वेश्चन नीड टू बी फोकस्ड ऑन. First question was what are the characteristics of stability strategy, and second question is why you prefer stability. What are the reasons why you will go ahead with strategy? So first of all, what are the characteristics of stability strategy? 7 points need to be remembered. First, same market, same business भी बोलो या product भी बोलो, both are correct. Second scenario, I focus on functional efficiency. Third point, redefinition, fresh investment is required or not required? Less required. Risk is more or less? Less. Safety approach or risky approach? Safety approach. Redefinition is there or not there? Not there. याद रखना. And most important, my research should focus on core competency. And last, growth is there or not there? There, but modest growth. I hope everybody clear. Second, what are the reason why you go ahead with stability? There are total how many reasons? 5. First point, okay, stability का कौन सा stage है? Maturity. Second, environment is relatively stable. Okay, the employee. Employees are comfortable. Okay, the market में जो expansion है, that is threat for me. And last concept is basically now multiple expansion has been done. Let consolidate. Multiple expansion has been done. Let consolidate. I hope these points are clear to you. After that, we have started the discussion on expansion. Expansion बोलो या growth strategy बोलो, the answer remains same. How many types of growth strategies are there? 2. First is internal growth strategy, external growth strategy. Do you remember the structure? Once again, how many types of growth strategies are there? Though internal, external. Internal growth strategy, external growth strategy. Internal growth strategy will be having 2 elements. One is intensification. What is that one point? And second will be diversification. In intensification, there are 3 concepts which we have discussed on day 1. Market penetration, market development, product development. Market penetration, market development, product development. Diversification, you will be having 2 discussion. One will be related, that is called concentric. What it is called? Concentric. And one will be unrelated, that is called conglomerate. That is called. So how many types of diversification are there, buddy? 2. One is concentric, one is conglomerate. I hope the things are clear. Okay, so after that comes to external growth strategy, and you will remember 2 words as such for right now. One will be mergers and acquisitions. Will be? And one will be, okay, strategic alliance. The best example can be V-Smart and Expert, Toyota और Suzuki. These are called alliance. Alliance और merger acquisition में difference क्या होता है? Merger acquisition में कहीं ना कहीं identity खत्म हो जाती है सर किसी ना किसी एक कंपनी की क्या हो जाती है? Identity खत्म. If there is a merger, both company will become a new company. Okay, then if that is acquisition, one company which is weakest company will be acquired by the strongest company, and the strongest company will be having their own name on that particular brand. So in both cases, the identity of at least one company changes. But that is not the case in strategic alliance. Strategic alliance can also be defined like joint venture as such. I hope you are aware about the joint venture. So that joint venture can concept be implemented in strategic alliance. But nevertheless, this was the structure to start with. Before starting with how many types of expansion or growth strategies are there, again you have the question. First of all, the question will be characteristics of expansion and why expansion. Okay, the same question what we have discussed in stability. Stability में कितने question discuss किए? 2. What are the 2 questions in stability? Remember that point. और चार्ट को बाद में मैं रिकॉल करूंगा. Don't worry, everything is a memory chart. आपको चार्ट बुक जो मिल जाएगी उसके अंदर ऑलमोस्ट 2 पेजेस के अंदर ये स्ट्रेटजीज चैप्टर खत्म हो जाएगा. Okay, so chart wise सब याद रह जाएगा. चार्ट का स्ट्रक्चर भूल जाओ. Pointer will be remembered very easily. But right now go with a flow. So first of all, the discussion comes into the picture. What are the 2 questions which we have discussed in stability strategy? Characteristics and why. Remember why or major reason, but I will be repeating why. The same question will be there for expansion. In expansion, the first question will be what are the characteristics of expansion strategy or growth strategy, and the second question will be what is the reason why you prefer expansion? What are the major reason why you prefer expansion? I hope this 2 point clear. Okay, and after that discussion, then comes the question, how many types of expansion strategies are there? And in types of expansion strategy, we are ready with the structure. So how many types are there? 2. One will be internal, external. Internal may will be having intensification, diversification. External may will be having 2 things. One will be merger acquisition and alliance.
Merger acquisition will not take major time because that will be nearly like the diversification. Our time will be consumed by only alliance. Technically अपना major time जो जाएगा इसके अंदर, that will be intensification and diversification, and to have multiple question answers, multiple examples, so that will be very clear what to be sought out. Whenever I am saying, suppose I am a toothpaste manufacturing company and started manufacturing toothbrush, what is the answer? Now your answer may be focusing on something like that new product has been developed, which is called toothbrush. Okay, but market may be new, then you may say this is called diversification. But this can also be a part of product development, because product development includes, okay, the original product ka related product. That is a major confusion. Your major confusion will be only in two things. One will be concentric diversification and one is product development. Because when I say diversification, okay, the market will be, product will be, but when I say product development, the market is existing, but product is, but new product should be related product. But concentric also say related product or unrelated? Related. So our major discussion goes on concentric and product development. Today's agenda will complete out what are the characteristics of expansion. Okay, second we'll discuss why expansion strategy. This is the basic questions we'll close, and then our main discussion comes on the three things which we have discussed on day one, that is called market development, product development and market penetration. You may be aware with the concept, but now we need to be very careful with the theory. What are the wordings we need to write? Okay, so you may be aware about the concept. If I ask you the question, help me out, Amit Tated is launching, he is already in the toothpaste company, toothpaste banata hai. And now the same toothpaste which was sold in Mumbai, now it is sold in Pune. Market development. But what is the theory to be remembered? That is what exactly we'll be closing out, and multiple permutation, combination, multiple ways, if you remember it out. One example, if you remember, okay, I hope you remember one example. Bournvita. The same product has been advertised differently, that pregnant mother can use that product. What was that concept? Market development. So, but market development के और कौन से तरीके हैं? That is how you need to remember the keywords. So today's target is very simple. Remember expansion का characteristics, remember expansion का reason, which is again very simple. Why? Because it is reverse of stability, almost reverse of stability. Because what you did in stability is other way around than expansion. Retrenchment तो कहानी बदल दो. Okay, yeah, remember retrenchment you should enter only if the money is lost. If cash flow is negative, okay, if net worth is gone, you are not able to pay the employee, then only suggest retrenchment. But you are still profitable. But how much profitable? Discussion comes on expansion and stability. So first of all, expansion, I hope you understood the base already. How many types of expansion are there? That is mainly discussed in the paragraph of expansion. जो पैराग्राफ है एक्सपेंशन का या ग्रोथ का, उसमें डिस्कशन ही यही हुआ है दैट व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर विच रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन. अच्छा, डू यू थिंक एक्सपेंशन इज वेरी रिस्की? व्हाई एक्सपेंशन इज रिस्की? व्हाट इज द रीजन व्हाई एक्सपेंशन इज रिस्की? ओके, इज देयर इज चांस ऑफ फेलियर? ओके, बट डू यू थिंक एक्सपेंशन इज ऑल्सो एडिंग ए करिश्मा? करिश्मा मीन्स मतलब इट इज हाईली मोटिवेटिंग. ओके, व्हाट इज द प्राइड फॉर सीईओ? एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी. Therefore, people goes with expansion. Okay, so now we are closing with certain questions. First of all, listen carefully और आराम से point बिठाइए. So first of all, we'll be focusing on what are the characteristics of expansion. My first question: do you think in expansion there is a redefinition of business? पक्का. Second, is there a growth or not a growth? कौन सा growth होगा? छोटा, if you remember the word, mammoth growth. Mammoth, M-A-M-M-O-T-H. What is the meaning of mammoth? Like an elephant, a biggest growth. Modest growth, mammoth growth. MCQ remember याद रखना. Okay, तो first point, business का redefinition होगा कि नहीं होगा? Okay, growth, mammoth growth होगा तो मेरे को भी मालूम है. Okay, कल उसमें भी हुआ था, लेकिन इसमें कितना होगा? Mammoth growth. I hope clear है. बड़े, the third very best concept, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट. अच्छा, स्टेबिलिटी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेस था, लेकिन यहां पर ज्यादा लगेगा. भारत माता की झेपा क्या मालिक. फोर्थ पॉइंट, इज इट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी? सारा आंसर एक ही पॉइंट में क्लोज कर सकते थे, लेकिन उनको आंसर बनाना था ना, नहीं तो ये तो 4 पॉइंट एकदम आराम से इजीली याद रहते हैं. सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट, ओके, रीडेफिनेशन इज देयर और नॉट देयर? देयर. सेकंड पॉइंट, ग्रोथ, मैमोथ ग्रोथ. थर्ड सिनेरियो, पैसा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ज्यादा लगेगा, ज्यादा
लगेगा। चौथा सिनेरियो अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एक ही पॉइंट में ऊपर के 3 भी कवर थे, लेकिन भाई मार्क्स, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कंटेंट नहीं बनाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा ना, फीलिंग नहीं आएगा, नहीं तो एक ही लाइन में आंसर खत्म होता, फिर तुमसे पूछते क्या आगे, थोड़ा ना पूछते, फिर ये क्वेश्चन का तो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता। तो क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी आ गई। पांचवा पॉइंट सबसे तोड़ सोचने वाली बात है। ओके, स्टेबिलिटी में देयर वाज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट आई एम ओनली मॉनिटरिंग environment. I hope you remember this. Don't go here and there. Monitoring environment is compulsory. Okay, if it is stability, if it is expansion, if it is retrenchment, what is compulsory? Monitoring. आपने जिस दिन monitoring of environment छोड़ दिया, okay, ठाकुर तो गियो. Remember this point. Okay, ठाकुर तो गियो, मतलब खत्म है. Your company is gone. Okay, your product will be outdated. Reason simple है, consumer preference में change, and this is the biggest problem need to be focused on. तो फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, जैसे स्टेबिलिटी में देयर वाज ओनली वन थिंग बर्डी, दैट वन थिंग वाज जस्ट वाचिंग एन एनवायरनमेंट बट फोकसिंग ऑन एक्सपेंशन. व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव? इफ आई फोकस ऑन एक्सपेंशन, व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव? व्हाट आई कैन डू विद एक्सपेंशन? एक्सपेंशन में ऑप्शंस क्या क्या है बड़ी? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ओके, अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बोला अगर मैं एक्सपेंशन सोच रहा हूं तो मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं एक्सपेंशन में? Can I go with market penetration? Can I go with market development? Can I go with product development? Can I diversify? Even you understood now I can do mergers and acquisitions also. Can I go with alliance? Yani there is only one option or permutation combinations. So it says expansion is highly versatile strategy. Expansion is highly, what is meaning of versatile? Versatile means what? Okay, it can change any time. It can change multiple times. You don't have only one constant thing to be done. In stability there was only one thing constant, monitoring. बाकी तो कुछ करना ही नहीं था. लेकिन भाई साहब एक्सपेंशन में, भाई साहब if you did market penetration and suppose okay market is with you and then also you want to expand, can you go ahead? Yes, market development, develop a new market for the same product. I hope you are getting the point. I hope झेप रहे मालिक. तो मेरे को बताओ, it is highly versatile. What is the meaning of versatile? Okay, it can change multiple times, can change multiple times. And sixth point is what we have discussed. Expansion involves, kaan khole ha, expansion involves two major strategies. One is intensification and second is diversification. Don't tell me internal and external. Okay, our expansion involves two major strategies. What are the two major strategies? Intensification. So what are the five, मतलब छठा characteristics भी आराम से याद रख सकते हो. तो what are the basically characteristics of expansion? Other name for expansion? Growth. So what are the characteristics? First, it is okay, it involves what? Redefinition of business. Second, paisa. अच्छा, second, growth. मैं बोल पैसा ज़्यादा, opposite of stability. Okay, changes can happen multiple times. Versatile, and two major studies are intensification, diversification. Intensification. In characteristics you are not required to write market penetration, market development, intensification involves. But ये तो point आपको खाली बस ये लिखना है. Expansion involves two major studies. What are the two major studies? Intensification and diversification. I hope everybody clear, Malik? पक्का? ठीक है. Now the question, but serious, simple point. Okay, nothing extraordinary. तो इसको याद रखना भी आसान है. Not a big deal at all. The second question comes: why we should prefer expansion? Why we should prefer expansion? Why? What do you think? What is the logic behind why you prefer expansion? Expansion क्यों prefer करते हैं? आराम से इंडिविजुअली वैसे ये मेरे को समझा नहीं. इंडिविजुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, तो स्टेबिलिटी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था स्टेबिलिटी में. नहीं, मेरे को पहले एक बार आराम से बताओ, एक पॉइंट क्लियर करते हैं. क्या स्टेबिलिटी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था? अरे यार, फिर तो स्टेबिलिटी करनी भी नहीं चाहिए थी. स्टेबिलिटी यू डिड बिकॉज यू आर हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल नॉट बी द ओनली ग्राउंड. बस उसको थोड़ा सा और कुछ टर्मिनोलॉजी में डालेंगे और कुछ डालेंगे. मार्केट शेयर. इफ आई वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, व्हिच स्ट्रेटजी इज बेटर? एक्सपांशन. परफेक्ट, आई विल एग्री ऑन दैट. वन एक वर्ड आया, हाँ, फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ. ओके, दिस कैन टर्न दिस फॉर इंक्रीजिंग this terminology can we apply on the market share? Yes. So same logic, if I want to increase the market share, it is automatically increasing wealth. तो टेक्निकली अभी पैसा ज्यादा बढ़ेगा, सेल ज्यादा बढ़ेगा, ये आंसर मत दो, इसको छोड़ के दूसरा कुछ दो. ओके, वो एक ही आंसर से खत्म हो गया. कौन सा वाला आंसर? मार्केट शेयर. यस मलिक. लेस कंपटीशन इन मार्केट. अच्छा, डू यू थिंक एक्सपेंशन विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ लेस कंपटीशन इन मार्केट? कैन इट बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ मोर कंपटीशन इन मार्केट? यस. बट व्हाट कैन बी द ग्राउंड?
अब एक्सपेंशन करने का मेन टारगेट क्या होगा? किसको हटाने का? कंपटीशन को। उल्टा करो, एक्सपेंशन करके क्या करूंगा? किसको हटाऊंगा? कंपटीशन। मां कसम भाई साहब, मार्केट पेनिट्रेशन क्या इंक्रीज करेगा? मार्केट पेनिट्रेशन क्या करेगा? मार्केट पेनिट्रेशन क्या करेगा? मार्केट पेनिट्रेशन, व्हाट मार्केट पेनिट्रेशन विल डू? विल इट इंक्रीज माय सेल? विल इट इंक्रीज माय शेयर? ओके, मेरे को बताओ कौन हटने वाला, फिर किसका इंपैक्ट होगा? तो देखो दोनों लॉजिक बैठ रहे हैं। फर्स्ट, इट इज इंक्रीजिंग माय मार्केट शेयर, बट एट द सेम टाइम ओके डेफिनेटली इट इज रिड्यूसिंग द competition. I am gaining the control over a market. I am gaining a control over the market. I hope everybody clear. तो पंडर लोग क्लियर है क्या? एक आंसर आया है भाई साहब, एक आंसर ऑनलाइन में भी आया है। एनी अदर और पॉइंट? एक आंसर है वो भी सही है। और कोई? डायनामिक एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट स्टैटिक है तो बहुत गलत आंसर होगा, क्योंकि एनवायरमेंट कभी स्टैटिक नहीं होगा। क्या बोला? रिलेटिवली। ये वर्ड ध्यान रखना भाई साहब। कभी भी किसी ने आंसर बोला है एनवायरमेंट इज स्टैटिक, अगला आइटम कंफर्म, यू विल कम टू नो इट इज नॉट स्टैटिक। ओके भाई, जोकिंगली बोल रहा हूं भाई, आई एम ऑलवेज देयर ह्यूमर। ये मैं वापस क्लियर कर रहा हूं। व्हेन आई से अगला आइटम कंफर्म, इसका मतलब ये सॉरी, इसका मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ आवर, अबे मेरे खुद के 5 आइटम गए लाइफ में। ओके तो डोंट वरी, मतलब इट्स ओनली फॉर ह्यूमर। एक छोटा सा वो ऐसा ऑटोमेटिकली आता है, मतलब इसको अपन बोलते हैं अपने दोस्तों की लेना। और अब ये अभी तक किसी को पता नहीं है तो डोंट वरी, ओवर ए पीरियड में समझा दूंगा। यू विल बी कैपेबल इनफ टू, आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके तो टेक्निकली मेरा क्वेश्चन ये है, एकदम सिंपल है। मेरे को बताओ ओके एनवायरमेंट कभी स्टेबल होगा? रिलेटिवली स्टेबल होगा। ओके तो फिर ग्रोथ कब करना चाहिए? जब एनवायरमेंट क्या हो? डायनामिक। परफेक्ट, एनवायरमेंट डायनामिक। ओके एक पॉइंट भूल रहे हो, एक वर्ड आया था बीच में, somebody was telling from here, if you remember there, pride. Okay, that is very common point. Okay, who feel the pride in expansion? CEO. Okay, तो मेरे को बताओ ऑर्गेनाइजेशन का CEO है, MDs है, उनको प्राइड किस में फीलिंग होगी? एक्सपांशन में। एवरीबॉडी क्लियर? एंड वन कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीक, 3-4 दिन के बीच में, last 3-4 days, one concept because of which we are going for expansion. Opportunity नहीं, stability is threat। नहीं, stability is never a threat। स्टेबिलिटी तो एकदम आराम से ही ना चलो ना तुम्हारे, हाँ नहीं इंक्लूड। अच्छा अभी देखो एक आंसर आया। अब देखो रिलेटिवली मैं कैसे लिंक कर रहा हूं, जस्ट यू एंड बी फैमिलियर विद वर्डिंग, बिकॉज यू कांट राइट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन इन द सेम फॉर्मेट। ओके पंटर ने बोला आफ्टर इंट्रो फेज विच फेज कम इन ग्रोथ, विल यूज विच? एक्सपांशन। दैट इज टेक्निकली डन बिकॉज टू गेन द मार्केट कंट्रोल और मार्केट शेयर। That can be a point where this concept comes into picture. Okay, when we are in phase of growth, we are actually gaining the market, na Malik? That is already taken care of. One more point which we have discussed in last 3-4 days, 2-3 days approximately. 2 concepts which we have discussed in other chapter. Core वो concepts chapter में discuss किया क्या मैंने? नहीं, मैंने जो chapter में marking करा दिया, discuss कर दिया है। एक है product life cycle के साथ, और एक point क्या discuss किया था? Experience curve. To gain the advantage of experience curve. If I am gaining an experience over a period of time, my cost per unit reduce, my learning effects come into picture, technology improvement come into picture, product development come into picture, automatically I am into which phase of my life? Expansion. तो expansion कब यूज करना चाहिए? जब आपको क्या आ रहा है? एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस कब आ रहा है, एक्सपीरियंस इफेक्ट आ रहा है, विच स्ट्रैटेजी इज सजेस्टेड? स्टेबिलिटी और एक्सपांशन? एक्सपांशन। दैट्स फेयर इनफ। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? ओके सपोज अब मुझे बताइए एक्सपांशन है, अगर मुझे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी? डाइवर्सिफाई। अब डाइवर्सिफाई को कैसे भी इंटरप्रेट करो, अभी आप, मैं बोल रहा हूं डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपांशन। अभी अगर कोई एग्जांपल कोई आके मेरे को बोलता है सर ओके आपकी एज हो गई है आपकी एज हो गई है, ओके आपका एक फैक्टर हो गया, नाउ डाइवर्सिफाई, ऐसा बोला जाता है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिफाई? एक्सपांड करिए, और एक्सपांड का पॉइंट है, पर हर जन का अपना अपना डाइवर्सिफिकेशन है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड एवरी बिजनेस मॉडल डज हैव इट्स ओन पॉइंट, यू कांट कंपेयर द डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, you need to understand the strategies depend on multiple factors you don't focus only on big company or large companies. Large companies are definitely exceptional. I'm not telling okay मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं कि large company बनने का नहीं, लेकिन large company बनने के लिए there are multiple things need to be done from day one. It is a large company or small companies, and धीरे by what they are doing, expanding, ultimately they are competing in market as a large company.
Okay, I hope this situation will be there in your local locality. तुम्हारे जो regional locality है वहाँ पर ऐसे possibility देखी होगी आपने. Example मेरे पास मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में अंधेरी में. Okay, JB Nagar, where one samosa wala is there, Babu Samosa. Babu Samosa. It's from childhood I am eating the samosa from there. रीजन सिंपल है, हमारे स्कूल में वो सर्व करते थे, तो पहली बार बचपन का जो समोसा का टेस्ट है दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलमोस्ट योर लाइफ लॉन्ग. इट्स ए लाइफ का फर्स्ट फ्लेवर समोसे का. एंड समोसा इज भाई इट्स माय एवरीथिंग. मतलब समोसा मेरा सिस्टम है. जिस दिन समोसा बंद कर दिया तुमने, इट्स बेसिकली इट्स ए लास्ट फेज ऑफ माय लाइफ देन. ओके, बस कॉन्सेप्ट सिंपल है. तो समोसा है, पर टेक्निकली आज भी अगर मुंबई गया तो वो समोसे वाला मेरे को बहुत अच्छे से, मतलब उसी के पास पहले जाता हूँ. मतलब घर पे सब छोड़, उस दिन शाम को मैं घर पे खाना खाएगा ही नहीं. 2 समोसा 1 पावड़ा. ओके, दिस इज हाउ द टेक्निकली हैपन. इतना बेस्ट चलता है. वो शाम को 5 बजे चालू करता है, मैं आपको बता रहा हूँ. और एवरी मोमेंट जब वो ऑल टुगेदर, आई डोंट नो व्हाट वी यूज द वर्ड इन इंग्लिश, बट हिंदी में उसको बोलते पाया. वो एक जो कढ़ाई में एक पाया निकालता है, जितने भी उसके कुछ 200 समोसे होते होंगे. ओके, अप्रॉक्सीमेटली ही, मतलब वो फ्राई करने के बाद जब बाहर निकलता है हार्डली 5 मिनट्स. ओके, डन. ओके, वो जितने पाए, और अप्रॉक्सीमेटली वो 4 से 5 पाए बनाता है और दिन के 1000 समोसे बेचता है. दैट्स इट, दैट्स इज डन फॉर डस्टेड. उसको हमने, मतलब ऐसे बहुत बड़ा डिस्कशन में मैंने बोला, यार बाबू ऐसा क्यों नहीं करता यार तू, यार और एक ब्रांच खोल ले, लोग रख ले. लोग भी नहीं रखता, वो खुद ही करता सब. ओके, द सिंपल फिलोसॉफी ऑफ हिम इज, ओके भाई यार मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं है. अब टेक्निकली जब ये समझ आया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बंदा श्रावण के महीने में, ओके वो 1 महीना, ओके 1 महीना छुट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 महीना चले जाता है. किधर? वो भगवान के दर्शन के लिए. ओके, माता जी के दिन रहते ना, वो 9 दिन, उसमें जाएगा वैष्णो देवी. और ये सब लोकल से घूमता है वो. एंड वो पैसे वाला है, मतलब ऐसा भी वो, मतलब ऐसा नहीं सर वो तो समोसे वाला है. इमेजिन करो दिन के 1000 समोसे बेचता है. ओके, हाँ 15 रुपये नहीं भाई, 20 रुपये मुंबई में. और अगर पब्लिक ने पाव समोसा खरीद लिया तो 25-28 रुपये पे चला जाता है. पाव पे भी तो मार्जिन है ही ना, कॉस्ट के इसमें मार्जिन है. अब मेरे को बताओ वो बंदे की अप्रोच कौन सा है, स्टेबिलिटी और एक्सपांशन? स्टेबिलिटी, बिकॉज एट द सेम टाइम ही इज फोकसिंग ऑन, बस मेरा मार्केट शेयर छेड़ना ही नहीं है मेरे को, जितने लोग खा रहे हैं. ओके, मैंने उसको पूछा तू क्यों नहीं कर रहा है? बोले देख अमित क्या होएगा मालूम है क्या, इफ आई ग्रो मगजमारी होगी, इस रिसोर्स को मैनेज करो, इस रिसोर्स को मैनेज करो, फिर उसके लिए मैं एक मैनेजर रखूंगा, फिर मेरे को वो मैनेजर को मैनेज करना पड़ेगा. मतलब ये अभी थिंक लॉजिकली, अगर अंबानी भी यही सोचता, नहीं भाई वो मैनेज करना पड़ता, जाने दे मैं कुछ नहीं करता भाई, जिसके घर में इंटरनेट है तो रहने दे, नहीं है तो ठीक है क्या कर लेंगे. आपको मालूम है इंटरनेट की वी यूज्ड टू पे 300 रुपीज पर मंथ, 200 रुपीज पर मंथ फॉर दैट ऑल्सो फॉर सर्टन जीबी. आज द थिंग्स इज ऑलमोस्ट फ्री. द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली ओनली बिकॉज ऑफ Ambani. It is only because of Jio. Across country, it is only Jio which is taking place. I know the share has been reduced because of price increase and other variants, but उसका अभी भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है. और आप जैसे ही बाहर की कंट्री में जाओगे, you will come to know what internet we are consuming is a far better cost compared to other countries. It is not at that cost what we are consuming internet. So it is thanks to Jio actually. बिकॉज जियो ने दूसरे नेटवर्क वालों को वो कॉस्ट पे लेके आया. okay, नहीं तो भाई तुम 200 रुपया 300 रुपया तो इंटरनेट का दे रहे थे, खाली मंथ का बिल तो छोड़ी दो, मंथ का रिचार्ज तो छोड़ी दो फोन के लिए. देयर वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर फोन एंड इंटरनेट. ओके, मतलब द थिंग्स वर डिफरेंट, ड्रामेटिकली चेंज. अब इमेजिन करो देयर आर 2 डिफरेंट पर्सन, ओके, हैविंग 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी. ओके, हु इज करेक्ट? बाबू इज करेक्ट और अंबानी इज करेक्ट? Both are correct. Why both are correct? Why both are correct? Why or how both are correct, Malik? I need to understand. सर समोसे वाले को कंपटीशन आ गया तो, एक क्वेश्चन आया, समोसे वाले के लिए कंपटीशन आ गया तो, टेक्निकली कंपटीशन नहीं आया ऐसा थोड़ा ना है, कंपटीशन आया हुआ है, लेकिन उसने अपना मार्केट प्रिजर्व किया. एग्जांपल, व्हेनेवर आई गो इन मुंबई अंधेरी, सबसे पहला प्रेफरेंस समोसा तो खाना ही है. दैट डे मेरा घर पे खाना है ही नहीं, व्हाट आई विल ईट? समोसा. पर पहला क्वेश्चन, समोसा किसका? बाबू नहीं मिला, द सेकेंड प्रेफरेंस गो विथ ब्रिजवासी. प्रेफरेंसेस एंड वो नहीं मिला, वो भी बंद रहा. सपोज अभी कैसा होता है, कभी कभी रात को 9 बजे पहुंचा, तो यूजुअली ड्यूरिंग मैं जब ड्राइव में जाता हूँ सुमित को बोल देता हूँ समोसा लेके घर पे, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो अवेलेबल नहीं हो, श्रावण का महीना हो गया भाई, वो चाहे भोले. अब ड्यूरिंग दैट टाइम समोसे की तलब थोड़ा ना छोड़ेंगे, वो भोलेनाथ के पास गए, अपन तो
तो ड्यूरिंग द टाइम मैं किसके पास चला जाऊंगा? किसी और के पास। ओके, फिर किसी और के पास भी नहीं मिला तो तीसरा फैक्टर, वो तीनों नहीं मिले तो फिर किधर भी खा लो। टेक्निकली ऐसे होता है। एंड होपफुली आप भी देखो, आई एम नॉट डिस्कसिंग ओनली फ्रॉम समोसा पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे बी हैविंग सर्टेन चॉइसेस ऑफ योर फूड विच इज प्रिफर्ड इन दिस वे। यू विल प्रिफर नहीं भाई इसके ही पहले है, फिर ये नहीं मिला तो खाना है तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा। नाउ टेल मी व्हाट वाज द टारगेट ऑफ बाबू? बाबू का टारगेट इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके, प्रिजर्व द मार्केट शेयर विच इज ऑलरेडी विथ हिम। अब क्वेश्चन आएगा, सर कभी ना कभी तो मैं मरने वाला हूं भाई। अरे बाबू के लिए भी तो यही है ना फिलोसॉफी। अब बाबू का जो बिजनेस था, इट वाज टेकन केयर बाय हिज फादर, इट इज नॉट बाबू तो मेरे एज का है और मैं छोटा था तब उसके बाबू के समोसे खाता था। मतलब क्या मजाक कर रहे हो? मतलब वो पैदा हुआ समोसा तलने लग गया। इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। हो तो कौन चला रहा था बिजनेस? पापा जो बिजनेस चला रहे थे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। पापा जो बिजनेस चला रहे, द सेम लॉजिक वाज टेकन ओवर बाय हुम? बाबू। ओके, अब बाबू के बेटा ही इज इनटू स्टडीज एंड अदर थिंग, व्हाटएवर इट विल बी, बट द क्वेश्चन इज क्या बाबू का मार्केट शेयर मर सकता है? आंसर इज यस, आई एम देयर। मतलब अरे यार, डेथ इज इनएविटेबल। तो वन फाइन डे अगर बाबू का जो नीश मार्केट है जो उसने पकड़ के रखा है वो चला जाएगा, तो बाबू कौन से मार्केट पे फोकस कर रहा है? फिर एक्सपांशन तो कर ही नहीं रहा है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी में अपना प्रिजर्विंग मार्केट शेयर, पर प्रिजर्विंग मार्केट शेयर वो कैसे प्रिजर्व कर रहा होगा? जियो के लिए वरी नहीं है ना। जियो के लिए एक ने बोला मैं छोड़ रहा हूं सर आपको, जियो बोलता कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास और बड़ा बड़ा मार्केट है और नए लोग। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। बट बाबू के लिए तो मार्केट शेयर क्या है? बहुत बड़ा है या नीश है? इसको नीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीश, नैरो मार्केट। विच मार्केट? नैरो। ओके, नैरो मार्केट, दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ बाबू इज सर्वाइविंग विद द नैरो मार्केट? इफ मार्केट गायब हो सकता है, जिसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल दिया, उसका एक मार्केट है। ओके, अगर कुछ हो गया उसका मार्केट तो गया। जो महीने में एग्जांपल मैं 2 बार जा रहा हूं, उसका 2 बार का कंजम्पशन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 10 समोसा अप्रोक्सीमेटली होता होगा, 2 या 3 बार का कंजम्पशन। मार्केट गया तो उसका 10 समोसा तो खत्म हुआ ना। आप बोलोगे सर 10 से क्या फर्क पड़ेगा? अबे मैं अकेला थोड़ा ना मरेगा। हाँ, यू आर कंसिडरिंग आई ओनली वी गो लिविंग दिस वर्ल्ड। उसके पास और मार्केट शेयर रहेंगे वो। अबे 60-70 साल के खाते भाई बापू मेरा। माय फादर ही इज आल्सो फैन ऑफ दिस। टेक्निकली दिस हैपन विद अ साइकिल। बाबू एंश्योर्स के जब वो ये करता है ना, मैं आपको बता रहा हूं उसकी एक स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन रही है। वो एंश्योर करता है कि उसकी फैमिली वाले सब लोग वो खाए। ओके, एंड ही ऑलवेज प्रिपेयर कस्टमाइज्ड थिंग्स फॉर द पीपल आल्सो। यानी एग्जांपल, बाबू को ऐसा बोला ना कि भाई अपने घर के लिए कुछ बनाना है, बाबू बोला भाई टेंशन मत लो, अलग से बना के देगा। एंड मेरे लिए नहीं, उसका जितना जो मार्केट शेयर है ना सबके लिए। अब एग्जांपल, इफ यू आस्क माय डॉटर टू ईट द समोसा, हर पहला प्रेफरेंस विल बी बाबू, क्योंकि वो 8 साल उधर रही है। बट माय आदित्य हु स्टार्टेड, मतलब वो अभी तो 5 साल का है एंड ही रिसेंटली मतलब वी आर, अभी उसके लिए धीरे धीरे समोसा अडॉप्ट होएगा। अभी उसका समोसा खिलाएगा तो मेरी बीवी मेरे को बाहर निकाल देगी। लेकिन आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। This is how the preservation of market share comes into picture. Same logic comes into market. Now tell me who is correct? Who is correct? Babu is correct or Ambani is correct? So how both are correct? I am not getting the point. One is focusing on stability, one is focusing on expansion. तो मतलब दोनों सही है? दोनों? तो फिर it depends on what? Ideology. यानी it doesn't depend on strategy, it depends on people. If you remember on first day in chapter 1 we discussed strategy never replace, okay, which management? Sound management. Yani ultimately it is a matter of sound management. Now think, okay, is Ambani coming to samosa business? Okay, do you think the strategy will be same or different? Different. Suppose Babu is going on Jio. The strategy would be, so it is not about strategy. It is about the people who are taking the decisions. It is about you and me who are taking the decisions. बाबू इज हैप्पी। बाबू बोलता है मेरे को अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है भाई। लास्ट बाबू की फिलोसफी एकदम सिंपल है। ओके, वन फाइन डे आई विल बी लिविंग द वर्ल्ड, तो लेट एंजॉय द वर्ल्ड। ही लव्स ट्रैवलिंग। ओके, ये पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर अंबानी को पसंद नहीं है ट्रैवलिंग, बट अंबानी को चार्टर्ड फ्लाइट में पसंद है। तो अंबानी बोला भाई मेरे को चार्टर्ड फ्लाइट में घूमना है, फॉर दैट पर्पस आई नीड टू अर्न करोड़ करोड़ करोड़। और बाबू बोल रहे भाई मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लोकल हिस्ट्री चाहिए। इसको जानने आने के लिए कितना चाहिए? बस, दैट्स फेयर इनफ। ओके, जो पैदल चलता है, मतलब आई हैव सीन दैट पर्सन, वो पैदल चलता है, पैदल वाले कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी कम्स फ्रॉम ए पर्सन, नॉट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज टेकन बाय पर्सन। तो आप याद रखना, जब मैं इसके एक्सपेंशन के 5 पॉइंट बोल रहा हूं, थिंक लॉजिकली, इट इज ऑल बेस्ड ऑन पर्सन। इट इज डेफिनेटली रिवर्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, बट अल्टीमेटली इट गोज इन अलाइनमेंट विथ व्हाट? पर्सन।
तो पहला पॉइंट, ओके, व्हेन द एक्सपेंशन टेक प्लेस, लिसन केयरफुली, ओके, व्हेन एनवायरमेंट इज, मैं अपने आंसर्स में आ रहा हूं, व्हेन एनवायरमेंट इज, ऑनलाइन पढ़ लो, क्लियर है कि रे, व्हेन एनवायरमेंट इज डायनामिक, ओके, एवरीबॉडी क्लियर। सेकंड, प्राइड, उधर क्या था ऐसा किया तो एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, इधर सीईओ इज प्राइड, एवरीबॉडी क्लियर। तो वापस आते, फर्स्ट एनवायरमेंट इज डायनामिक, ओके, सीईओ का क्या रह रहा है, प्राइड, ओके। थर्ड, विथ एक्सपेंशन कैन आई गेट ए कंट्रोल ओवर द मार्केट, यस, तो थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ओवर, आवाज नहीं आई, कंट्रोल ओवर मार्केट। फोर्थ पॉइंट, एक्सपीरियंस कर्व, ओके, एक्सपीरियंस कर्व। मैं वापस बोल रहा हूं, फोकस ऑन एक्शंस, बिकॉज व्हेन वी आर रिवाइजिंग इट इज ओनली एक्शन, एंड अल्टीमेटली आपको जब रिकॉल करना होगा बहुत बार एक्शन ही याद आएंगे, तो एक्शन के ऊपर फोकस करिए। तो चौथा पॉइंट क्या हुआ, एक्सपीरियंस कर्व, ओके। डू यू थिंक एक्सपीरियंस कर्व विल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बढ़ाने का, स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाने का, तो क्या मदद करेगा, एक्सपीरियंस कर्व। अच्छा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व आर देयर, नोट्स में नहीं दिखने का, नोट्स में नहीं दिखने, बिना देखे बताओ, 4 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, बार बार लर्निंग इफेक्ट। सेकंड इज, ऐसा कुछ किया था मैंने, ऐसा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्शन। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बाहर वाला, चौथा वाला, पर तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट में रीडिजाइन। तो 4 फैक्टर्स फॉर एक्सपीरियंस का, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग, वो सीक्वेंस चेंज मत करो, जितना सीक्वेंस तुम मेरे साथ रखोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी ऑल्सो। सर मेरे लिए क्यों आएगा, क्योंकि तुम सही लिखोगे, तो अल्टीमेटली वो तो बेनिफिशियल मेरा ही है। तो भाई याद रखना, सीक्वेंस मेंटेन करो। पहला पॉइंट, एक्सपीरियंस करोगे, 4 फैक्टर्स, लर्निंग, सेकंड इकोनॉमिक स्केल, थर्ड प्रोडक्ट में रीडिजाइन, एंड फोर्थ पॉइंट एनवायरमेंट में चेंज, मतलब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट। तो व्हाट आर द 5 फैक्टर्स टू बी फोकस्ड ऑन, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपेंशन। इजी आंसर है। सबसे पहले मेरे पास एक्शन में ध्यान दो, ये क्या था, व्हाट इज डायनामिक, एनवायरमेंट, प्राइड, greater control of market, fourth experience curve. I hope everybody clear. And can I use multiple strategies, expansion can have multiple strategies, yes, what are the multiple strategies, intensification, diversification, mergers, acquisitions and alliance, okay। याद देखो, ऊपर वाले का आंसर 1 पॉइंट और नीचे वाले का आंसर 1 पॉइंट इज सिमिलर। ऊपर वाले का लास्ट पॉइंट क्या था, कैरेट का लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन विल हैव, अच्छा आप ऊपर का कैरेट से भूल गए क्या, चलो रिकॉल करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दूसरा क्वेश्चन रीजन। दिल मत तोड़ो रे। फर्स्ट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड क्वेश्चन वाई एक्सपेंशन, एवरीबॉडी क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 5। आराम से फर्स्ट पॉइंट याद कर, फर्स्ट पॉइंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अच्छा रीडेफिनेशन, मैं रीडेफिनेशन है या नहीं है, कंट्रोल सॉरी ग्रोथ, मैमोथ ग्रोथ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। और यहां पर एक ही ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शन, उसको क्या बोला था, वर्सेटाइल। एंड लास्ट पॉइंट, देयर आर 2 एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, इंटेंसिफिकेशन एंड 6 पॉइंट क्लोज करो। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, why expansion or reason for expansion, the question is same. First point, dynamic, what is dynamic, environment, pride, control over market, experience curve, and यहाँ पर multiple options है. What are the multiple options? Intensification, diversification, merger, acquisition, alliance. I hope clear मलिक, पक्का everybody. तो ये अपने कौन सी स्ट्रेटजी खत्म की, पर स्ट्रेटजी खत्म नहीं हुई. Okay, this is only base. Base, what discussion of base? Expansion. कान खुले, everyone listen carefully. The next step starts with how many types of expansion strategies are there? This answer you are aware. How many types of expansion strategies are there? 2. What are the 2? Doi. Intensification नहीं बे. Internal. Intensification सुनना. तू बोला intensification. Okay, one is internal, external. External, internal में what are the 2? Intensification, diversification. External में merger, acquisition and alliance. अच्छा पहले इसको रटो यार, ये आंसर को रटो, ये आंसर चाहिए मेरे को, रटा पहले. Okay, how many types of expansion strategies are there? Internal, external. इसको नाम ऐसे देंगे, internal growth strategies, external growth strategy, internal growth strategies, intensification, डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन में 3,
मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में दो, रिलेटेड रिलेटेड, कॉन्सेंट्रिक, अनरिलेटेड, कॉन्ग्लोमरेट। ये कल का डिस्कशन है अपना। क्लियर मालिक? डोंट मिस इट आउट। अगर आज और कल के लेक्चर में आपने मिस कर दिया, मतलब आज और कल का कनेक्शन और डे आफ्टर टुमारो, मतलब ट्यूसडे मैक्स टू मैक्स, ये कनेक्शन नहीं समझा, आई एम टेलिंग यू, केस स्टडी ब्लंडर, बाउंसर। मतलब आपको आंसर आता होगा, आपके हिसाब से आंसर आएगा कॉन्सेंट्रिक और एक्चुअली आंसर होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपके हिसाब से आंसर होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट एक्चुअली आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक। मार्क कसम रेस टू स्क्वायर, गारंटी आई एम टेलिंग यू। तो कंटिन्यूस लेक्चर का सेशन ध्यान रखना, एंड इट्स वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। इट इज नथिंग सुपरफिशियल, इट इज नॉट नथिंग आर्टिफिशियल। सर हम लोग बुक पढ़ के कर लेंगे, भाई अगर ऐसा ही हो जाता ना तो मेरे को किधर वरी था। When I am saying it can be a blunder, it means by reading the book or by understanding example cannot be closed out. एक example, दो example, तीन example, then also clarity नहीं आएगी unless until you don't understand only what is an interpretation of that words. Whether interpretation of words matter करेंगे तो वापस आते हैं। ओके, तो ये दो खत्म हो गए। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में दो नाम क्या बोले आपने? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। पक्का क्लियर? एंड लास्ट दो पॉइंट, मर्जर, एक्वेशन एंड अलायंस। क्लियर है मालिक? अब अगर आपको एवरीवन, एक मिनट इधर ध्यान दिए, एक मिनट एवरीवन, ऑनलाइन पढ़ लोग सारी आत्मा इधर ध्यान दो, दूसरी जगह ध्यान नहीं, चाय वाय पी रहे हैं छोड़ दो, लिसन केयरफुली। नहीं ऑनलाइन में तो संडे है आज, ओके संडे रहता है, संडे के दिन बहुत ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। आपके लिए भी ऐसा लगता होगा कि संडे है सर क्या जिंदगी चल रही है, बट यही जिंदगी है। देखो दर्द भरी जिंदगी के बाद जब सुकून आएगा, यू विल फाइंड इट बेटर। ओके याद रखो, इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे 2-3 महीने के बाद, फिर थोड़े टाइम, फिर जो मई वाला है उसकी तो कॉम्प्रोमाइज का बात ही नहीं करना, और जो सितंबर वाला है उसके लिए थोड़ा रिलैक्स पॉइंट मिलेगा। ओके समथिंग लाइक दैट। ओके बट मई वाले के लिए तो फटी पड़ी रहेगी ना, क्योंकि मई वाला बोलेगा फरवरी में अरे भाई क्या करूं, क्योंकि दोनों ग्रुप रहेंगे। फिर 6 पेपर की तैयारी, तो सर मेरे को तो संडे तो आगे भी मिलने वाला नहीं है। हाँ तो मई के पेपर होने के बाद क्या करेगा, है ना? मई के पेपर के बाद टाइम मिलेगा ना, एंजॉय, बट आफ्टर मई। सितंबर वाले यू एंजॉय आफ्टर फरवरी। ओके जैसे अभी जो मई वाली है उनकी पोजीशन अभी ओके डोके है, मतलब ठीक है कर लेंगे। सितंबर वाली की भी आपकी भी पोजीशन ऐसे फरवरी में रहेगी ओके डोके, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी, अभी जनवरी वालों को पूछो, समझ रहा है? मतलब वो ऐसा लग रहा है कि गैस पे बैठे हैं वहां का, ऐसा इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है प्रॉब्लम टाइम का आएगा। तो मालिक प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई नो संडे है, संडे घर पे बैठे होंगे, आराम से टाइम पास कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान देके इधर ध्यान दो। ध्यान ये है, अगर क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा, कान खुलिया, एटलीस्ट ये आंसर मेरे को दे दो, आई एम डूइंग एडवर्टाइजिंग दिन में 3 बार विथ स्ट्रैटेजी, बस इतना ही क्वेश्चन है। मार्केट पेनिट्रेशन, इन दिस यू विल नेवर राइट एनीथिंग अबाउट एक्सपेंशन, द डायरेक्ट आंसर विल बी, वहां पर नहीं लिखोगे इट इज एन टाइप ऑफ एक्सपेंशन, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विल बी मेमोथ ग्रोथ, दिस ग्रोथ, फलाना ढिमका, मार्केट कंट्रोल, एक्सपीरियंस का, नथिंग। वेयर इज द कंटेंट? मार्केट पेनिट्रेशन, विच विल बी ए पैराग्राफ ओनली, एंड हाउ टू राइट द आंसर वो अपन डिस्कशन करेंगे, पर खाली एक क्या लिखना पड़ेगा? पैराग्राफ, दैट्स इट। ओके और शायद आपने थोड़ा सा और बेटर बनाना है तो आप इंटेंसिफिकेशन पे लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। So sir, when we need to write this expansion, when we need to write this characteristics, when we need to write this major reason, only the question is on expansion. कल मैंने आपको क्या समझा था? स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में कैसे डिफरेंस करोगे? एक वर्ड ग्रोथ के बेसिस पे बताओ, मेमोथ ग्रोथ और मॉडल ग्रोथ। सपोज एक क्वेश्चन आता है, एबीसी लिमिटेड इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड दे आर फोकसिंग ऑन टारगेटिंग ऑन मेमोथ ग्रोथ। ओके विच स्ट्रेटजी इज देयर? एक्सप्लेन व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज प्रीफर्ड, explain why this strategy is preferred, reasons, then only this question will come. This question never be applied in case study. नहीं समझ में आ रहा, वापस समझा रहा हूं। स्टेबिलिटी में केस स्टडी कॉन्सेप्ट था, देयर वाज ओनली वन स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। एनी केस स्टडी कम्स, स्टेबिलिटी विल बी द आंसर, बट इफ एनी केस स्टडी कम्स, एक्सपेंशन विल नेवर बी द आंसर अनलेस until direct concept on expansion comes into picture. Every case study will have answer, market penetration, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। उस टाइम पे ये नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट बी राइटिंग दिस आंसर। तो व्हेन दिस शुड बी रिटन? डायरेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो कल वाले क्या बताया था मैंने, स्टेबिलिटी में क्या समझा था आपको? स्टेबिलिटी कैसे डायरेक्टली आएगा क्या कभी? अगर मैं आप पास्ट वाला पेपर भी देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर कैसे क्वेश्चन है? केस स्टडी ऐसे क्रैक करना था,
अब जो एक्सपेंशन है, अब भी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, ये कब लिखना है? डायरेक्ट, डायरेक्ट या डायरेक्टली ऐसा बोला होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन बताइए, रीजन फॉर एक्सपेंशन बताइए, देन ओनली दिस क्वेश्चन विल अप्लाइड। लेकिन अगर मैंने बोला टूथपेस्ट वाली कंपनी ने टूथ पाउडर चालू किया, पाउडर मालूम है ना, पाउडर, अरे वो पुराना पाउडर वही था, अरे अपनी दादी वही यूज करती थी, घर पे गर्म करती थी वो ऐसे, एंड शी यूज्ड टू पुट दिस लाइक दिस, एंड एंड क्या, मैं बोला दादी क्या कर रही है? बोले ब्रश है हमारा। बोला सही है भाई, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो माय क्वेश्चन, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो व्हाट विल बी द आंसर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। यू विल नेवर राइट दिस आंसर। बाद में मेरे को मत बोलना मैंने बताया नहीं, मैंने 3 बार ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया, यूट्यूब पे भी लेक्चर इसका, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है। बाद में बोलेगे सर यू नेवर सजेस्टेड, आई थॉट दिस आंसर शुड बी रिटन। आई होप क्लियर मालिक। तो व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम? डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर। कम टू द पेज नंबर 4.5 मालिक। ओके, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। क्या लगता है भाई साहब ये बोल रहा है, ये बिल्कुल जेन्युइन लगा मुझे। ओके, दोगलापन नहीं है, ये जेन्युइन है। दोगलापन क्या था? ओके, नहीं सिपलाइन था, दोगलापन सिपलाइन है बोलना। यार इतना भी उसको मत कर रहे, बेचारा कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग इनोवेशन। ओके, एटलीस्ट कुछ तो निकाला ना नया। एवरीबडी वॉज थिंकिंग अ फेस अ मास्क, ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ ग्लास मास्क। मतलब कितना सारा थॉट प्रोसेस है उसका। ऐसा ऐसा बेइज्जती नहीं करने का। आई नो द प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए वैल्यू, बट बेइज्जती नहीं करने का। आई नो द पर्सन डिडंट अप्लाई द माइंड, बट बेइज्जती नहीं करने का। आई नो दैट पर्सन हैव नेवर थॉट व्हाट विल हैपन इन एनवायरनमेंट, बट बेइज्जती नहीं करने का भाई। तो नॉट करेक्ट, नॉट फेयर इनफ। हाँ भाई। ओके, तो नेवरदलेस ये बिल्कुल जेन्युइन लगा मुझे। ओके, तो अब इस पे थोड़ा सा एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं। देखो आपको मसाला ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। कम टू द पेज 4.5। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज इंप्लीमेंटेड by redefining the business, by enlarging the scope of business and substantially increasing investment in business. तो मेरे को बताओ पहले 3 लाइन में, okay, so what are the keywords to be remembered while writing? अच्छा, once again, last time पंडर लोग, when this answer to be written? डायरेक्ट आया है, केस स्टडी भी आया, लेकिन नीचे क्या लिखा है? नहीं, केस स्टडी भी आया पर नीचे क्या लिखा है? एक्सपांशन। They are not discussing what strategy is applied. They are discussing explain expansion strategy or growth strategy. Then only this answer should be written. Please be clear in mind. Okay. Growth expansion strategy में से keyword याद रखना while writing this paragraph. Okay, enlarging scope and substantially increasing investment. Scope बढ़ा रहे, investment बढ़ा रहे. Okay, go ahead. It is a strategy that can be equated with dynamism. Dynamism. Okay, vigor, promise and success. Dynamism, dynamic. Vigor, multiple elements. Promise, बॉस सफलता तुम्हारी नजदीक है. Success, it is also the same concept. It is often characterized by significant reformulation of goals and direction, major initiatives and moves involving investments, exploration and onslaught into new products, new technology, new market, innovative decisions and action programs, so on. Technically देखोगे, in short, आपको सब में नया नया करते जाओगे तो ये strategy काम आएगी. This strategy may take enterprise along relatively unknown and risky paths, but full of promises and pitfalls. Pitfalls मतलब खड्डे आते रहेंगे, बम्प्स आते रहेंगे, बट आपको प्रॉमिस है कि भाई सक्सेस आपका है. ओके, सो टेक्निकली व्हाई इफ क्वेश्चन कम्स ऑन डायरेक्ट ऑन एक्सपेंशन, व्हाट इज ए पैराग्राफ वी शुड रिमेंबर थरोली. बेसिक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ना एक्सपेंशन का. दैट इज योर फर्स्ट लाइन व्हिच आई हैव हाइलाइटेड यू. ये पहला वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा रट लेना है बस. आपके उसके बाद आप रटो नहीं रटो डजंट मैटर, बट ये पहला पैराग्राफ शुड बी एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर रीजंस. ओके, कैन वी गो ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स? एक बार रिपीट मार दो फिर लिखना चालू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? 6. नीचे वाला 5, 6 पॉइंट. सबसे पहले फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, रीडेफिनेशन है या नहीं है? है. ग्रोथ मैमोथ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, वर्सेटाइल, एंड 2 थिंग्स आर ऑलवेज देयर, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. अपडेट करिए. चलिए, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट एक्सपांशन स्ट्रेटजीज. ब्लू एक्सपांशन स्ट्रेटजीज. आपका इस चैप्टर में जो रेड आएगा ना, वो कॉन्सेंट्रिक में जाएगा, एक पॉइंट कॉन्सेंट्रिक में जाएगा और टर्न अराउंड में जाएगा.
रेड वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें कीवर्ड्स याद रखना मुश्किल रहते हैं। मुश्किल मतलब थोड़ा सा थियरी विल नॉट बी इजी टू रिमेंबर, थोड़ा टाइम लगेगा आपको याद रखने के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स क्या? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, redefinition of business. Second, the same scenario, expansion strategy leads to growth. पहले ऐसे ही लिखोगे, leads to growth, leads to growth. देखो एक वन मोर पॉइंट, इफ मल्टीपल पॉइंट्स विल बी देयर सर, when you are discussing this, can you apply or show the question of past year? See, every person will be have a different strategy, so just wait for this week. Okay, you will volume 2 will come into picture, along with if you want to check at your end also, मतलब I am telling you everything will be done, आप उसकी चिंता मत करिए, बस एक थोड़ा सा फोकस करिए with a focus on containing point. अभी एग्जाम्पल when I am discussing this one और मैं इसी का क्वेश्चन बताऊं तो यार क्रैक हो जाता है यार, मेरे को डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा ना यार, मेरे को तो बताओ, मैं अभी यार रिलेटिवली यही बता रहा हूँ, देखो अभी बताओ मेरे को कौन सा स्ट्रेटजी है। ओके, एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन है तो आपको तो मालूम ही पड़ जाएगा, तो पूरा चैप्टर करो फिर क्वेश्चन उठाओ, फिर उसमें स्ट्रेटजी बताओ कौन सा होगा। और मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, मतलब रिट्रेंचमेंट, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन विल बी बिजनेस एक्सपांशन एंड रिट्रेंचमेंट, आई एम टेलिंग यू, एंड वी हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस इन द वॉल्यूम 2 इटसेल्फ। वॉल्यूम 2 में अगर 4 लगातार क्वेश्चन गए, मतलब लगातार क्वेश्चन की सीरीज बता रहा हूं, यू विल कम टू नो योर आंसर विल बी रिट्रेंचमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट द आंसर विल बी डिफरेंट। डेफिनेटली उसके अंदर आंसर का लॉजिक रहेगा, लेकिन अगर अपन लॉजिक लगाएंगे, डिस्कशन करेंगे जैसा पॉइंट, यू विल कम टू नो द थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। तो आप जस्ट अप्लाई करिए शांति से, अपन पहला अभी फ्लो क्या करिए, कंटेंट। अभी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बोलो, अभी जैसे एग्जाम्पल एक्सपांशन का मैंने क्या क्वेश्चन बोला, एक्सपांशन का क्वेश्चन क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल मैं ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ एंड मेमोथ ग्रोथ चाहिए, तो कौन सी स्ट्रेटजी बताओगे आप, तो एक्सपांशन। अभी एक क्वेश्चन है, अभी टेक्निकली अगर आप नवंबर 23 का पेपर देख लो, जैसे मैं लिखा ही रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं 10 ये बोल रहा हूं आप, जैसे अभी एग्जांपल ये कौन से पेपर में आया था, सितंबर 24, थोड़ा सा सितंबर 24 सर्च मारना है तो मार के देख लो, आपके पास वॉल्यूम 3 है ही। ओके, मेरे लिए थोड़ा सा प्रोसेस मेरे हिसाब से चलने दो, आई होप यू आर क्लियर। ओके, मैं क्या चाहता हूं मालूम है क्या, ओके जस्ट एक चैप्टर एंड होने दो। ओके, उस दिन के बाद का अगला लेक्चर पूरा क्वेश्चन बैंक पे ही है ना, और उसके 2 फायदे विच ऑल्सो डिस्कस ड्यूरिंग द अदर लेक्चर्स ऑल्सो। पहला फायदा क्या होगा, वंस आई डिस्कस दैट क्वेश्चन बैंक लेक्चर, automatically what will happen, okay, you will have the base of that only one lecture which include all questions. Suppose while revising the question bank or something, you are getting confused into why this answer is there, why not the other answer is there. So technically you can refer multiple lectures, क्योंकि अगर मैं multiple में जाऊंगा तो multiple में confusion होएगा, और कौन से चैप्टर में कौन से लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन है वो याद रखना, और मेरे को भी उतना डेटा मैनेज करना चैलेंजिंग है। बेटर ऑप्शन, ओके भाई यार 14वां लेक्चर 14th लेक्चर खत्म होता है, 13th या 14th लेक्चर में एंड होता है, 15वां लेक्चर आपका क्वेश्चन बैंक का ही, कौन से चैप्टर का, चैप्टर 4 का। फिर अगले 6 लेक्चर के बाद वापस और एक लेक्चर कौन सा, क्वेश्चन बैंक। तो यू विल बी हैविंग दैट डेटाबेस ऑफ क्वेश्चन बैंक, ओके, जो इंडिविजुअली भी आप देख सकते हो। एंड दूसरा थोड़ा सा फ्लो चलने दो आराम से, है ना, डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट। एंड एनीवे आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको क्लैरिटी आई जाएगी। ओके, तो सेकंड पॉइंट अपन किस में जाते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी लीड्स टू growth. Okay, a firm with mammoth, mammoth, mammoth growth ambition, can meet its objective through which strategy, expansion strategy. This can be MCQ for you also, this line.
A firm with a mammoth growth ambition can meet its objective through dash strategy. Expansion, stability और ऐसा कुछ और एक नाम रहेगा, retrenchment और combination. तो आपका आंसर एक ही रहेगा, कौन सा वाला? Expansion. थर्ड आंसर बताइए, इस स्ट्रेटजी में क्या लगता है? ओके, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा या कम? ज्यादा. थर्ड पॉइंट, एक्सपांशन स्ट्रेटजी. थर्ड पॉइंट, एक्सपांशन स्ट्रेटजी requires lot of fresh investment. Lot of fresh investment. खत्म नहीं हुआ है. Lot of fresh investment क्यों चाहिए? Why they require lot of fresh investment? For expansion मैं समझा, पर for what? For new products, new markets, new business, for new product, markets, business, etc. Fourth point, expansion strategy is opposite of. Expansion strategy is opposite of stability strategy. राम भाई आस्किंग कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट का डिफरेंस एक बार एक्सप्लेन करो. कल करेंगे ना रे, एक दिन देने देना उसको. डोंट वरी बाड़ी. ओके, इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, एक लाइन इसमें डाल दोगे, एक आप लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं. किसमें रिवॉर्ड्स लिमिटेड है? स्टेबिलिटी में रिवॉर्ड्स लिमिटेड है या बहुत ज्यादा है? रिवॉर्ड्स लिमिटेड है. और किसमें रिवॉर्ड्स हाई है? उसी के साथ में कंडीशन. द रिवॉर्ड्स इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, फोर्थ पॉइंट का ही डिस्कशन, कंटिन्यूशन. मैं लिख नहीं रहा उसको. द रिवॉर्ड्स इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आर लिमिटेड. द रिवॉर्ड्स इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आर लिमिटेड. कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन खटाखट फटाफट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. एनवायरमेंट, लॉ में चेंजेस, पॉलिटिकल इफेक्ट चेंजेस, ये इसको डायनामिक बोलते हैं. एज्यूम होता है मतलब क्या? हाँ, एनालिसिस समझ में आएगा. अब मेरे को बताओ, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट, व्हाट डू यू थिंक? बीजेपी वाज हैविंग ए मेजर कंट्रोल और नॉट? ओके, आर यू अवेयर लास्ट 5 years क्या हुआ महाराष्ट्र स्टेट का सीएम पोजीशन के लिए? आपने देखा होगा, पहले 2 साल फडणवीस जी, 1 साल 1.5 साल फडणवीस जी, फिर बाद में उद्धव ठाकरे जी का पॉइंट, फिर वो मतलब मालूम है ना वो पावर कुछ, मतलब इनिशियली पहला टर्म था फडणवीस जी का. उसके बाद जब ये लोग आए, पर बीजेपी वाज नॉट हैविंग ए गुड कंट्रोल. बट शिवसेना मुंबई, उद्धव ठाकरे जी का कंट्रोल अच्छा था, पर लेकिन कुछ तो डिस्प्यूट हुआ सीएम की पोजीशन को लेकर. एंड देन उद्धव ठाकरे जी एंटर्ड इनटू अलायंस विथ आघाड़ी. ओके, शरद पवार एंड अदर एलिमेंट्स, कांग्रेस उनके साथ आए. फिर पहले इनिशियल पीरियड में जब कोविड था तो कौन सीएम थे? उद्धव ठाकरे जी. फिर बाद में एक वन फाइन डे अजित पवार जी आते हैं फडणवीस जी के साथ में. एंड वन फाइन डे दैट नाइट अपने को समझ में आता है कि मां कसम कल सुबह अजित पवार जी एंड फडणवीस जी ने ओथ ले लिया कि भाई, उन्होंने प्रेजेंट कर लिया प्रेसिडेंट को, भाई यार ये आप मेजोरिटी हमारे पास है. और उसी दिन शाम को मालूम पड़ता है मेजोरिटी वापस. ओके, दिस हैपेंड इन लास्ट 3 years आफ्टर कोविड. कोविड में कांस्टेंट थे, उद्धव ठाकरे जी वर देयर. आफ्टर दैट दिस हैपेंड. वन फाइन डे सुबह शपथ विधि, मतलब प्रेजेंट करते, यू नीड टू प्रेजेंट मेजोरिटी, तो बाकी एमएलए मेरे साथ है. ये किसने बताया? फडणवीस जी ने. फडणवीस जी ने प्रेजेंट किया, ओके भाई यार हमारे पास मेजोरिटी है, ओथ भी ले लिया. मतलब इधर किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, और ओथ ले लिया. और बाद में मतलब अपने को भी न्यूज से मालूम पड़ा. देयर वाज नो फॉर्मल प्रोसेस आल्सो. ऐसा बोलते हैं ना, वो एक सेरेमनी, वैसा भी नहीं हुआ. और शाम को मालूम पड़ता है नहीं भाई वापस मेजोरिटी ले ली. क्यों? शरद पवार जी ने किसको बुला लिया वापस? अजित पवार जी को. अजित पवार जी केम बैक, मतलब वापस चले गए. ओके, यानी उनका जो मेजोरिटी का होल्डिंग में एक अजित पवार जी का जो होल्ड था वो निकल गया. ओके, थोड़े टाइम पर वापस किसके पास चली गई? उद्धव ठाकरे जी. और उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे जी एंड उद्धव ठाकरे जी के बीच में डिस्प्यूट्स हुए, मतलब डिस्प्यूट्स, फिलोसफी एंड अदर एलिमेंट. एंड एकनाथ शिंदे जी केम इनटू बीजेपी and majority comes again to BJP. But BJP was not having a control, na? Because that 5 years BJP का जो voting bank था, because they didn't focus on their own voting, rather than they focus on शिवसेना, जो original शिवसेना.
ओके और इस बार देखो बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई. बीजेपी बोला भाई तुम शिवसेना, बिकॉज दे अंडरस्टूड अगर शिवसेना को एकनाथ शिंदे जी के साथ में पूरा मेजोरिटी में गए तो अल्टीमेटली इट में हैपन, उनका कंट्रोलिंग पावर छड़ जाएगा. तो भाई मैक्सिमम प्लेसेस में उन्होंने अपने ही रिप्रेजेंटेटिव रखे. तो आज के डेट में मेजोरिटी सीट किसके पास है? बीजेपी. अभी आप बोलोगे सर मेजोरिटी किधर है, मतलब 280 में से ऑलमोस्ट 130 के रेंज में है. मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, पर 128 कुछ और 125 128 कुछ है. अभी भी आप बोलोगे एक 15-20 तो कम ही है. अदर्स है ना, आपको क्या लगता है किसी ने भी हाथ निकाल लिया, अदर्स को 5 मिनट लगेगा. और आई होप यू अंडरस्टूड 5 मिनट कैसे लगेगा. और जिसको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, ओके पोगो इज अ वेरी बेस्ट चैनल टू वॉच इट आउट, क्योंकि 5 मिनट लगेगा अदर्स को बीजेपी के पास आने. तो बीजेपी का कंट्रोलिंग बहुत तोड़ है ना. मेरे को बताओ क्या अभी अगले 5 साल तक कोई प्रॉब्लम है बीजेपी को? तो आप मेरे को बताओ, एनवायरमेंट विल बी स्टैटिक फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और डायनामिक? स्टैटिक फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स. So if you are designing a strategy, anything in Maharashtra, you can consider this political stability. So environment is static for political, but it may be dynamic from the consumer point of view. Can consumer preference changes? तो वो तो चेंज भी हो सकता है. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा. आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? आई होप क्लियर है, समझ में आया होगा. तो क्या अच्छा क्या लिखा इसका एक्सपांशन के बाद क्या लिखा? द रिवॉर्ड्स आर लिमिट स्टेबिलिटी में लिमिटेड है, एंड उल्टा उसके साथ में उल्टा स्टेटमेंट डाल दो. द रिवॉर्ड्स इन एक्सपांशन स्ट्रेटजीज आर द रिवॉर्ड्स इन एक्सपांशन स्ट्रेटजीज आर अनलिमिटेड, मतलब हाई. अभी भी खत्म मत करो, रुको. तो क्या लिखा मेरे को बता, 4th पॉइंट क्या लिखा? एक्सपांशन स्ट्रेटजी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी. उसके बाद किसके बारे में लिखा? रिवॉर्ड्स इन स्टेबिलिटी आर लिमिटेड, द रिवॉर्ड्स इन एक्सपांशन इज हाई, बट इन टर्म्स ऑफ रिस्क इज हाई किसमें? एक्सपांशन. रिस्क इज लो किसमें? स्टेबिलिटी. तो रिवॉर्ड्स एंड रिस्क ये दोनों का लिखना है स्टेटमेंट में, डाल दीजिए. इन टर्म्स ऑफ रिस्क बोथ आर अपोजिट. इन टर्म्स ऑफ रिस्क बोथ आर अपोजिट. तो आई होप ये पॉइंटर याद रहेगा आपको. ओके, इन टर्म्स ऑफ रिस्क बोथ आर अपोजिट. तो इसके अंदर रिवॉर्ड्स एंड रिस्क के बारे में लिखा. इन टर्म्स ऑफ रिस्क बोथ आर अपोजिट. 5वां पॉइंट तो आपके लिए फेवरेट ही है. मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, हाईली वर्सेटाइल. एक्सपांशन स्ट्रैटेजी is highly versatile strategy. What is the meaning of highly versatile strategy? Okay, आप याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं. Okay, permutation combination. I am not having only one option. I am having multiple options. So highly versatile. Okay, after that 6th point and the last point. Okay, expansion strategy will have how many major strategy? 2. Expansion strategy will have 2 major strategy. Will have 2 major strategy. और दोनों के नाम क्या? इंटेंसिफिकेशन. इंटरनल नहीं रे, इधर इंटरनल एक्सटर्नल नहीं लिखना था ना. इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. Intensification and diversification. This question has not been asked yet, nor in RTP, nor in question bank. तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है. ओके, तो टेक्निकली वी आर कंज्यूमिंग द डेटा ऑफ फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स. कोविड के 1 साल के पहले के टाइम से 19 एंड से, उसके पहले का ITSM का सिलेबस बहुत ही अलग था. तो वी कैन नॉट टेक दैट डेटा एट ऑल. तो इफ यू आर फोकस ऑन ओल्डेस्ट पॉसिबल नहीं है. तो अपना डेटा कहां से चालू होता है? 19 एंड से. तो अगर वहां से लेकर अभी तक कंपेयर करें तो दिस क्वेश्चन हैज नेवर बीन आस्क्ड. सर रीजन सिंपल है. कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए? ये आना चाहिए या मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले आना चाहिए? वो कॉन्टेक्स्ट है, वो फ्रीक्वेंटली मिलेंगे आपको, वही आए हुए हैं. तो टेक्निकली आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, कीवर्ड हाईलाइट कर लिए. रिवाइज करने के लिए व्हाट आर द कीवर्ड्स टू बी फोकस्ड ऑन? फर्स्ट वर्ड रीडेफिनेशन, सेकेंड वर्ड मैमोथ ग्रोथ, थर्ड वर्ड fresh investment, fourth opposite, fifth
versatile, and sixth is intensification and diversification. क्लोज कर दीजिए. मेजर रीजन फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन नवंबर 23 के पेपर में आया था. नवंबर 23 के पेपर में, आरटीपी में नहीं, पेपर में. नवंबर 23 दिस क्वेश्चन वाज देयर. एक बार रिपीट कर देंगे पांचों पॉइंट, फिर बाद में लिख लेते फटाफट. फर्स्ट ओके क्या था? एनवायरमेंट डायनामिक है, याद आया. सेकंड प्राइड है, मुझे मार्केट शेयर पे क्या करना है? मार्केट पे कंट्रोल, गेन मोर कंट्रोल. एवरीबॉडी क्लियर? चौथा सिनेरियो. एंड पांचवा कितने ऑप्शंस है? सब नाम लिखने के, सब नाम लिखने के. इधर वर्सेटाइल वर्ड यूज नहीं करने का. इट विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सब नाम. क्लियर? ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. ओके, इट मे बी यूज्ड व्हेन एनवायरमेंट is dynamic and demands increase in pace of activity. Increase in pace मतलब स्पीड बढ़ाओ यार काम की, ऐसा. डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी मतलब अगर आप चेंज नहीं होंगे तो कोई दूसरा लेके जाएगा मार्केट. तो इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी, R&D बढ़ाओ वगैरह वगैरह. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट, strategist may feel more satisfied with कौन सी स्ट्रैटेजी? एक्सपांशन. इट इज प्राइड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव्स. इट इज प्राइड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव्स. फोर्थ पॉइंट का एंड पार्ट में याद रखना रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखना है. रिस्क के बारे में लिखना है, जिसमें एकदम सिंपल पॉइंट बताता हूँ. ओके, स्टेबिलिटी में रिवॉर्ड बहुत कम है और एक्सपेंशन में रिवॉर्ड ज़्यादा है, और दोनों रिस्क के कंपैरिजन में अपोजिट है. बस इतना ही स्टेटमेंट है. बोथ आर अपोजिट इन टर्म्स ऑफ रिस्क. सेकेंड पॉइंट सबका हुआ मालिक? मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर? ठीक है, डन ना. थर्ड पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेक ए expansion may lead to greater control over market and consumer. डन मालिक? पक्का? चौथा पॉइंट क्या यूज हो रहा है? एक्सपीरियंस कर्व. तो इसमें अपन वर्ड लिखते वक्त थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे. ओके, एक्सपीरियंस कर्व कॉन्सेप्ट एंड अलोंग विथ स्केल ऑफ ऑपरेशन. दो वर्ड. कौन सा? एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन में अक्रू. जैसा जैसा आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलते जाएगा? एक्सपीरियंस कर्व. तो अगर आपको एक्सपीरियंस कर्व यूज करना है या एक्सपीरियंस कर्व लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपांशन. तो वर्डिंग्स में अपने को जैसे ध्यान रखना पड़ेगा. डाल दीजिए मालिक. इसी शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने. इसी का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस कर्व. जाने दो, फुल फॉर्म ही लिखता मां कसम, नहीं तो एग्जामिनेशन कमेटी डाल दोगे. एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन एडवांटेजेस में अक्रू. ब्लू में ही चल रहा है ना सबका. कीवर्ड याद रखो, आंसर में ज्यादा टाइम पास नहीं करते रहने का. एक बार आपने समझ लिया क्लास में, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड. दैट्स हाउ ब्लू वर्ड विल कम इनटू पिक्चर. एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? कोई डाउट? फोर्थ पॉइंट क्लियर?
एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन एडवांटेजेस में अक्रू, अक्रू मतलब आएंगे, और ओवर ए पीरियड आप उसको यूज करके और आगे बढ़ते जाओगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सपांशन इंक्लूड्स। अब आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। एक्सपांशन इंक्लूड्स, जितना फेंक सकते हो फेंको, पर 4-5 पॉइंट से ज्यादा नहीं। एक्सपांशन इंक्लूड्स क्या क्या? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, अलायंस। तो भारत माता की। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। कीवर्ड्स हाईलाइट किए, रिवाइज करने के लिए करो भाई। चार्ट्स में आपको यही कीवर्ड मिलने वाले हैं, चार्ट बुक जो आएगी ना, तो उस केस में यही कीवर्ड्स है। तो पहला कीवर्ड डायनामिक, दूसरा कीवर्ड ओके प्राइड, ग्रेटर कंट्रोल, एक्सपीरियंस कर्व एंड एक्सपेंशन इंक्लूड्स। जो भी आपने लिखे हुए एक्सपेंशन इंक्लूड्स में कितने पॉइंट लिखे? 5। ये क्वेश्चन कितनी बार आया? एक बार। टेक्निकली स्पीकिंग फ्रॉम नवंबर 19 ऑनवर्ड्स, May 20 ऑनवर्ड्स, मतलब May 20 था ही नहीं एग्जाम कोविड की वजह से, तो December 20 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट। कोविड के टाइम पे एग्जाम नहीं हुआ था, अगर आपको मालूम है तो December 20 में एक एग्जाम हुआ और Jan 21 में एक एग्जाम हुआ। तो 2020 के 2 एग्जामिनेशन आगे शिफ्ट हुए, वहां से सब इंक्लूड करे। दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड येट, एक ही बार पूछा गया है, और ऊपर वाला कैरेट से तो अभी तक एक बार भी नहीं आया। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज आर देयर? ओके, नाम देखो, एक्सपेंशन थ्रू, नहीं, पहला नाम क्या है? इंटरनल ग्रोथ, और दूसरा क्या नाम होगा फिर? एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ अपना टारगेट अभी है नहीं, एक्सटर्नल ग्रोथ डे आफ्टर टुमारो के बाद, ट्यूसडे और वेडनेसडे विल फोकस ऑन ग्रोथ एंड रिटर्न, लास्ट वाला पोर्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली स्पीकिंग इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज में 2 स्ट्रेटजीज है। पहला नाम इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नाउ टेक्निकली इंटेंसिफिकेशन इंक्लूड्स हाउ मेनी पॉइंट्स? इंटेंसिफिकेशन इंक्लूड्स हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। ओके, तो कौन से 3 पॉइंट है? मार्केट डेवलपमेंट। तो अगर मैंने आपको बोला इंटेंसिफिकेशन पे लिख के दिखाया, स्टेटमेंट लिखे, कुछ पैराग्राफ लिखे, नोट्स में मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं बोल रहा हूं इंटेंसिफिकेशन लिखो, मसाला, सब मसाला, तो व्हाट यू विल राइट? क्या लिखोगे इंटेंसिफिकेशन में? इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या? अभी अपना दिमाग लगाओ, इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या? इंटेंसिफिकेशन मींस, ज्यादा दिमागी मत लगाओ, 3 पॉइंट्स। समझ में आया? और वो 3 पॉइंट में क्या क्या था? मेरे को वर्ड चाहिए। नहीं, मार्केट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब मैं बोल रहा हूं तो और एक वर्ड आता है नहीं, प्रोडक्ट जब बोलूंगा तो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोडक्ट, द वन मोर वर्ड विल कम, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। तो प्रोडक्ट और बिजनेस एंड मार्केट। तो मार्केट पेनिट्रेशन इंक्लूड्स, मार्केट पेनिट्रेशन इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस। ओके, मार्केट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस, न्यू मार्केट, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस, एग्जिस्टिंग मार्केट। अभी और फिल्टर करेंगे अपन, तो सबसे पहले पहले पॉइंट पे ही रहते हैं। पहला क्या नाम है? मार्केट पेनिट्रेशन। वापस आते हैं, वर्ड मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन? हम क्या करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन में? आर वी फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस? तो कंप्लीट फोकस विल बी ऑन, वापस ये कंप्लीट फोकस ऑन, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन, मसाला यही है, मसाला ये तो याद यही रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, कंप्लीटली फोकस ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट। ये पक्का समझा? ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम अपने रिसोर्सेस कहां पर लगाते हैं? हम अपने मेहनत कहां पर लगाते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी मत बोलना, स्टेबिलिटी नहीं हो तुम, वो हटाओ। ओके, तो हमारा पूरा रिसोर्स किस पे लगाते हैं? सेल्स बढ़ाने में। हमारा पूरा रिसोर्स किधर लगाते हैं? सेल्स बढ़ाने में। यानी हमारा पूरा रिसोर्स लगेगा प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए। वर्ड वर्ड वर्ड। अच्छा भाई और बहनों, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। If you keep the word intact, then only it will be possible that we can score a good marks. Word I'm telling you. I'm not worried about English. I'm worried about word. When we are discussing about this point, okay, diversification, today and tomorrow you will come to know. मतलब ये तो आज एक छोटा सा पोर्शन ही है, बट कल जैसे आएगा आपको मालूम पड़ेगा की वर्ड्स है जो ध्यान रखोगे तो सही काम होगा। तो जैसे अभी मैंने बोला, अभी आप बोलो मार्केट पेनिट्रेशन, तो जनरलाइज भी लिख सकते हैं सब लोग ना।
मेरे को बताओ, एवरीबडी कैन राइट जनरल, हाँ भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बट दैट्स नॉट द थिंग व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस। तो भाई वर्ड्स को स्टेगनेंट रखो। सबसे पहला वापस चालू करते हैं, क्या क्या वर्ड्स है आप दिखाओ, और उसके बाद ही वो मसाला लिख पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टिंग मार्केट, कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केट। तो फिर पहला क्या था, एग्जिस्टिंग। हाँ, तो वर्ड मिस मत करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस। सर ऐसा तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज ये है और ये स्टार्ट है। ओके, आगे तो वर्ड्स की बौछार आने वाली है, पर 100% इट विल बी रिलेटिवली इजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट, आई बेट ऑन दिस। बट अगर आप वो इंटरेक्शन करते रहे तो, आपने इंटरेक्शन छोड़ा फिर वो रीड करना पड़ेगा। देखो, आई होप एवरीबडी वुड एग्री। ओके, अच्छा पहला पॉइंट है सीए करना है ना, एवरीबडी इज इन ना, कि somebody is trying with permutation combination, highly versatile, सर आई एम हाईली वर्सेटाइल, सीए करना है ना। तो अब देखो, मतलब इसका मतलब इंटर तो क्लियर होना ही है। अब या तो ये एक एटम या दो एटम, वॉट एवर इट में बी, बट क्लियर होना है। तो इसका मतलब पढ़ना तो है ही, और पढ़ना है तो अब दो ऑप्शन है, या तो क्लास में पढ़ो या तो घर पे जाके पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। somebody में से नहीं सर एक काम करूंगा मैं, एफएम के भरोसे चला जाऊंगा, 40 लेके आऊंगा ये पेपर में, और एसएम को कुछ भी नहीं, जय माता दी, वो 15 मार्क तो जय माता दी, मतलब मालूम ना एमसीक्यू, वो तो फेंकूंगा, थियरी छोड़ दूंगा। फेयर इनफ, दिस इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रैटेजी। नहीं अरे दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस इज फेयर इनफ, दिस इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। ओके, दिस इज बट हाईली रिस्की स्ट्रैटेजी, देयर आर 2 रिस्क इन्वॉल्वड इन इट। व्हाट आर द 2 रिस्क इन्वॉल्वड इन इट? व्हेन यू आर नॉट स्टडीइंग एसएम, 15 मार्क्स तो ब्लंडर है, ठीक है। अब नाउ इन एफएम देयर इज हाउ मेनी मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल? 35, which you will be very confident. You will be saying, sir, प्रशांत सर ने माँ कसम तोड़ खत्म कर दिया। हाँ भाई, तोड़ बंदा है भाई, चॉकलेट भाई, he can do anything. सर मतलब कसम से, मतलब इनके बारे में क्या ही बताऊं, मतलब ये प्रैक्टिकल अरे एक नंबर है भाई, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, तुमको आ जाएगा, सॉल्व करना आएगा, लेकिन कितने मार्क का? 35 में से यू विल बी गेटिंग अप टू मार्क। व्हेन वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यू में 50 मार्क, 15 मार्क का आ जाएगा, तो 50 मार्क का हो जाएगा। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनर इज नॉट कंफर्टेबल ना, एग्जामिनर को नहीं पता ना कौन क्या है, तो और वो पॉइंट होंगे। अब सर क्वेश्चन क्रैक करना नहीं करना कितना भी रहा, इट मे हैव सम पार्ट ऑफ रिस्क, आई एम नॉट टेलिंग कंप्लीटली रिस्क, पर उसमें एफएम आपको कितना अच्छा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको 50 में से 40 लाना है, मतलब एफएम कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप जितना टाइम उसमें डालोगे, उसके रिलेटिवली कम टाइम आपका किसमें जाएगा? एसएम, और एसएम निकाल देगा। उल्टा भी अप्रोच सही नहीं है, मैं बोल रहा हूं बस स्ट्रैटेजीज है। कोई बोल रहा है सर प्रैक्टिकल जम ही नहीं रहा है एक काम करते सर एसएम है, ओके एग्जांपल एफएम के 3 बार पढ़ के हो जाएगा ना एसएम, जब तक एफएम खत्म होगा तब तक मैं 3 बार पढ़ के एसएम खत्म कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये थियरी है। ओके, व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ मतलब यू रोट कॉन्सेप्चुअली करेक्ट बट द कीवर्ड यू डिडंट एबल टू रिमेंबर, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसका बैलेंस अप्रोच इज फेयर इनफ। बैलेंस अप्रोच में एकदम सिंपल है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू जो है वो टारगेट पहले सुपर होने चाहिए, जिसके लिए क्लास का एक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकंड, व्हेन राइटिंग ए थियरी ऑफ 35 मार्क्स, व्हाट वी आर राइटिंग, मतलब आपने अभी हाल फिलहाल 2 क्वेश्चन लिखे ना, उसके पूरे एफर्ट्स का रीजन एक ही है, दैट इज फॉर 35 मार्क्स। अदरवाइज तो क्लास सुन के आप वो 15 मार्क तो आप स्कोर कर लोगे, गारंटी है। पर वो लिख के जो आना चाहिए ना, ये सब कितने मार्क के लिए? 35। बस ये आपको बैलेंस ऑफ करना पड़ेगा। ओके, अगर आप क्लास में नहीं करोगे, क्लास में मेरे साथ ध्यान नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, घर पे जाने के बाद पढ़ना पड़ेगा। और घर पे जाने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है क्या? टाइम ही नहीं मिलता। और मेरे को बताओ एसएम कौन सा पेपर 6 में से? 6, वो भी 6 में कौन सा, पहला वाला या बाद में वाला? बाद में वाला, यानी खत्म ना, लास्ट बाद में देखेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और उसके बाद दिखती है एसएम की बुक तो इतनी सी है, उसको बाजू में रखो, कॉन्फिडेंस आएगा। किसी और सब्जेक्ट के साथ में कॉस्टिंग के सामने रखो तो अरे ऐसा लगेगा भाई साहब। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको लगेगा इसको बाद में आराम से कर सकते हैं। और ये बात के चक्कर में वो एग्जाम के दिन तक भी नहीं आएगा। मैं सही में बोल रहा हूं, दिस इज एटीट्यूड, पीपल का एटीट्यूड है भाई, लास्ट इज लास्ट। और फोकस कितना भी रहता है तो अरे भाई वी आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ओके अकाउंट्स करेंगे, टैक्स करेंगे, ये करेंगे, फिर टैक्स का एक वॉल्यूम दिखेगा, उसका अपना ही एक वॉल्यूम है, वो अलग से ग्रुप ही होना चाहिए था। मतलब ग्रुप 1, ग्रुप टू एंड टैक्स, इस तरह से मैनेज करते तो बेटर ऑफ होता था। मतलब नहीं, वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तब आई एम डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम, कैसे मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो फिर इसको मैनेज क्लास में खत्म कर लीजिए, क्लास के बाद टाइम मत लगाइए। तो फटाफट कीवर्ड मार्केट पेनिट्रेशन के फर्स्ट वर्ड, ओके, एग्जिस्टिंग मार्क,
existing product or business. Concentrate on which market? Existing market, but concentrate on same market. Concentrate on maintain same level of efforts. Nahi, maintain same level of efforts will go in stability. Okay, so focus on growth. Focus on which growth? Normal growth or profitable growth? Word, profitable growth. Okay, and profitable growth by selling the product in same market. इतना पैराग्राफ खत्म. दैट्स योर मार्केट पेनिट्रेशन. तो सर फिर ये इधर मार्केट पेनिट्रेशन तो ऑलमोस्ट इतने तक हो जाएगा. ओके, टेक्निकली फिर एक्स्ट्रा लाइन वैसे भी रखी हुई है ना अपन ने, ओफू को ध्यान रखने का. अब एग्जांपल बताओ ओफू क्या क्या है. 2 मिनट में आपको खत्म करना है. एक मिनट लेते हैं, 1-2 मिनट में लेते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के एग्जांपल. सबसे पहला पॉइंट, मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया, दिन में 2 बार ब्रश करो. नहीं, बोर्नविटा मार्केट पेनिट्रेशन है, बहुत अट्रैक्टेड है बोर्नविटा की तरफ. बोर्नविटा इज नेवर ए मार्केट पेनिट्रेशन. बोर्नविटा का एग्जांपल कौन सा था? मम्मी ले सकते, प्रेग्नेंट मदर, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. तो अपन अभी किसमें है? मार्केट पेनिट्रेशन. तो पहला एग्जांपल रिमेंबर, एकदम सिंपल पॉइंट पे. पहला एग्जांपल, टूथपेस्ट कितनी बार करो ब्रश? 2 बार, दिन में 2 बार करो. सेकंड, डिस्काउंट ऑफर्स. ओके, बाय वन, क्या कॉन्सेप्ट है? मार्केट पेनिट्रेशन. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ, चेंज एडवर्टाइजिंग मोड. चेंज एडवर्टाइजिंग मोड नहीं, वो क्या है फिर? एडवर्टाइजिंग मोड चेंज करना, मार्केट डेवलपमेंट. अगर एग्जांपल न्यूज़पेपर में देता था, अभी रेडियो में दे रहा हूं. मार्केट डेवलपमेंट. न्यूज़पेपर में दिन में 2 बार दे रहा हूं. मार्केट पेनिट्रेशन. तो 3 चीजें मार्केट पेनिट्रेशन के लिए एकदम सिंपल याद रख. सबसे पहला पॉइंट टूथपेस्ट. सेकंड पॉइंट सेल्स ऑफर. ऑफर एंड डिस्काउंट्स, बाय वन गेट वन फ्री, जो भी ऑफर एंड डिस्काउंट्स है. एंड तीसरा सिनारियो, ओके, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, डोंट चेंज एडवर्टाइजिंग मोड, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग. पहले ये खाली 3 ओफू इधर लिख के रख लो मार्केट पेनिट्रेशन में, बाद में देखेंगे. इधर ओफू लिखो मार्केट पेनिट्रेशन में. ओफू मतलब एग्जाम में लिखोगे क्या? तो ये ओफू कहां से आया? क्वेश्चन बैंक से. दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक. तो मेरे को बताओ पहला पॉइंट ओफू. टूथपेस्ट नहीं, एक्चुअली टूथपेस्ट गलत हो गया. रुको, ब्रश 2 टाइम्स. ब्रश 2 टाइम्स. सेकेंड, सेल्स ऑफर, बाय वन गेट वन. इसके साथ और एक, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी? एडवर्टाइजिंग. एवरीबडी क्लियर? ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग. अस्सला ऐसा, टेक केयर बॉडी. कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर प्लीज डोंट मिस आउट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वापस ये बेस कॉन्सेप्ट है. उसके बाद का भी नहीं मिस करना है, उसके अगले दिन का भी मिस नहीं करना है, आगे का भी मिस नहीं करना है. नहीं करना है. बोल बड़ी, क्या मजाक कर रहा है? ओके, मेरे को बता, अपने घर वाले कौन से सोशल मीडिया पे? इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? घर वाले किस पे है? फेसबुक पे. इंस्टा पे नहीं है. तू किस पे है? इंस्टाग्राम पे. तो मैंने ऐड किया इंस्टा पे, तो किसको प्रमोट हुआ? तेरे को. और मैंने फेसबुक पे प्रमोट किया, तो नया मार्केट है ना भाई. तोड़ मालिक, समझा?